اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں سے ابھی دیکھا صدیقی صاحب جو مہاراشٹر کے لیڈر کو شرپسندوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا اور وہ الحمدللہ شہید ہو گئے، اور اللہ کے فضل سے ان کے جنازے میں تدفین کو لے جاتے ہوئے ڈولہ دیکھا تو یہ یقین ہوا کہ ہجوم ایک امڑ آیا سمندر کی طرح، جو اس کی جھال جو اویسس کی طرح ہوتی ہے، ویسا ریلا جو ہے ان کے جنازے میں شریک تھا۔ اور خاص کر کے ہمارا جو فلمی دنیا کا جو مسلمان ہے، جو خان ہے، یہ سلمان خان آدھا ہندو آدھا مسلمان خود بول لیا، اور شاہ رخ خان اپنی بیٹی کو ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے بولا تھا اسکول جاتے وقت، کرسچن اسکول میں پڑھ رہی وقت۔ اور عامر خان میری ماں جو ہے میرے کو کرشنا کا اوتار جیسی دکھتی بولا، یا پھر سیف علی خان جب اپنے بیٹے کا نام رکھا مسلمانوں کا، مسلمان بادشاہ کا، تو انہیں تاریخ سے امپریس ہوتا تھا، تاریخ کی وہ فلمیں کرنے کے لیے شاید وہ دیکھتا تھا وہ ویسے کہانیاں۔ تو اس کے بیٹے کا جب نام رکھے تو یہ لوگ اس پہ بھی اعتراض کیے، تو اپنے آپ کو دہریہ بتا دیا ہو۔ اور میں یہ 4 خانوں کے تعلق سے آج سے تقریباً 11 سال پہلے بتایا تھا کہ دنیا کی جو تمہارے پاس شہرت ہے وہ تمہاری آخرت لے ڈوبی، کیونکہ تم لوگ نہ ہندو رہے نہ مسلمان۔ تو میرا اس میں اب یہ کہنا ہے کہ جب سلمان خان صدیقی صاحب سے دوستی ہے اور داؤد ابراہیم بھی صدیق صاحب سے دوستی ہے، تو یہ عجیب نیا دور آ گیا۔ اب کوئی یہ بولے کہ میں اندرا گاندھی کی محبت میں جو ہے کانگریس آئی جوائن کرا تھا، یا راجیو گاندھی سے میں، امیتابھ بولے کہ میں دوست تھا، یا پھر جو ہے کوئی بولے کہ میں گاندھی کے زمانے میں آزادی کے لیے جیل گیا تھا۔ تو یہ تو نیا رونا شروع ہو گیا۔ خالی مارنے والے کو ایک بہانہ چاہیے نفرت کا۔ خیر، ایک میرا خیال آیا تو یہ بولا میں، لیکن سلمان خان کو ابھی بھی توبہ کر لینا چاہیے۔ اللہ کا جو ہے سچا بندہ ابھی بھی بن سکتا، وقت ہے اس کے پاس۔ سب سے پہلے وہ یہ کرے کہ صدق دل سے مسجد میں جائے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور اللہ کے دربار میں اس کی عدالت میں پیش کر دے اپنے آپ کو، مجرم کی طرح، گنہگار کی طرح، دہریہ کی طرح، یا ہندو یا کرسچن کو خوش کرنا جو چاہتا ہے تو، اس سے تیرا فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ، ہم اذان دیتے ہیں انڈیا میں بھی، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے بول کے ہم اذان دیتے 5 وقت۔ کوئی ان 1445 سال میں دنیا میں کوئی بھی یہ بات نہیں سمجھا کہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ کوئی اور خدا ہوتا تو ہماری اذان ساری دنیا میں منادی کرنے نہیں دیتا، یعنی پروکلیم کرنے نہیں دیتا۔ ہمارا جو 5 وقت جو سلوگن کی طرح ہوتا ہے، آؤ صلاح کے لیے اور کامیابی حاصل کر لو، تو یہ بات انڈیا کا ہندو بھی نہیں سمجھ سکتا، کرسچن بھی نہیں سمجھ سکتا، کوئی اور خدا جو تمہارے سامنے کبھی آیا بھی نہیں۔ اور خدا کے معنی یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، اس واسطے ہندو بھی پروف نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس دیوی ہے۔ اب جیسے کاجل درگا کے جو ہے
पंडाल में गई और वहाँ जाके लड़ रही। पिछले साल भी लड़ी थी। हमारे बचपन में हम हैदराबाद में वरंगल में देखते थे कि उसको हालदारा बोलती थी उन्हें औरत। वो बदकम्मा को गए तो ऐसा झूमते थे वो लोग, सर के बाल इधर उधर करके, अभी भी करते हैदराबाद में। और उन लोगों को वो थोड़ी देर क्यों आता, उस पर शैतान आ जाता। आप लोग ये बातों को रिसर्च के तौर पे नहीं समझे, मैं रिसर्च के तौर पे ज़िंदगी को समझा। अल्लाह हक है और अल्लाह सलमान खान तेरे घर को हिफाजत करेगा। तू नमाज पढ़ ले 2 रकात, तौबा कर ले। ऐ अल्लाह जो तू नज़र नहीं आता, मैं डायरेक्ट तुझसे बात करूँ। अब तू बोला क्रिश्चियन जीसस का मैं क्रॉस डाल लेके फिरूंगा ह्यूमन बीइंग बोल के, तो भी तेरे को जीसस नजर नहीं आएंगे, ना तेरे को दुर्गा देवी नजर आएगी, ना तेरे को राम नजर आएगा, क्योंकि दुनिया में उन लोगों का आना ही नहीं हुआ। हमारे अल्लाह के ऐलान के बाद अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, इसके बाद कोई तुम्हारे सामने नहीं आया। ये एक बात को समझ के अल्लाह का हो जा सलमान खान और शादी कर ले और घर पे ईसार बांधने करा। एक मुसलमान को ऐसा पेशे वाले को रख ले जो बेचारा आलिम भी हो और मदरसे का भी हो और वो दीन से मोहब्बत रखने वाला हो, तो तेरे घर आके आयतल कुर्सी और आमना रसूलु रोज़ पढ़ के जाओ बोल, और बैठ के सूरह यासीन भी पढ़ लो बोल तेरे घर में, ताकि तेरे बाप के ऊपर जो तेरी जो गणेश की थाली लेके फिराया, तेरे बाप को भी पागल कर दिया। इस वास्ते अब बहकावा दिख रहा हो बुढ़ापे में बेचारा। जावेद की सोबत में था तो उसको भी शैतान लपेट लिया। जावेद के पास अल्लाह इसलिए है। और फरहान अख्तर को कोई नहीं मारता, जावेद को कोई नहीं मारता। क्यों? क्योंकि उन लोग पहले से बोल दिए उन लोग को अल्लाह नहीं चाहिए, दुनिया चाहिए। इस वास्ते अल्लाह नहीं है बोल दिए वो लोग। इस वास्ते जोया अख्तर को, फरहान अख्तर को या जावेद अख्तर को नहीं होता हमला, तेरे को होता। और वो सैफ अली भी बोल दिया मैं धैर्य हूँ बोल के, यानी नास्तिक हूँ, मैं एथियस्ट हूँ, एग्नोस्टिक हूँ बोल दिया, उस पर भी हमला नहीं होता। अब फिर भी नहीं बोल सकते, गुंजाइश है। सैफ अली मोहम्मद वो पटौड़ी का बेटा है बोल के गुंजाइश है। शाहरुख खान के ऊपर बीवी हिंदू रखा, उससे भी कोई दुश्मनी कर सकता, उसकी बीवी अब तक हिंदू है। और उसका एक बेटा है जो मजहब पे चलना चाह रहा, बड़ा और छोटा भी। इंशाल्लाह मैं उसकी एक प्यारी सी तस्वीर देखा, शाहरुख खान के घर में नमाज पढ़ रहा छोटा बेटा उसका, और जो है मुसल्ला उठा रहा था। तो अल्लाह की बरकत आ जाती घर में सजदा करने से। अल्लाह के हिजबुल बहर डाल ले, तेरे घर के पूरे जो बलाएं हैं वो खुद ब खुद चले जाएंगी, और अल्लाह फरिश्तों के ज़रिए तेरे हर तरह से हिफाजत करेगा। अब शादी कर ले, इस वास्ते कहा कि अल्लाह ताला तेरे जहन को लाउबली तबीयत रखा, तेरा बैलेंस कभी नहीं रहा। तू जो है खामखा पैसा रख के, शोहरत रख के भी तू स्टेज पे भड़क जाता। तेरे अंदर का जो शैतान है ना, वो तेरे को गुरूर में लाता, फिरौन की तरह बना देता तेरे को। मैं खुदा हूँ समझाता फिरौन, और अल्लाह उसकी बॉडी मुर्दा है अब तो भी बॉडी रखा इबरत के लिए। उसका सोल नहीं है फिरौन की, तो भी रखा। तेरे को भी क्या करा मालूम है? इस्लाम से निकाल दिया नहीं उन्हें, तू खुद निकल गया। तेरे अंदर का असल सोल निकल गई, रूह निकल गई तेरी अंदर से। 2 बातें दे के मैं ये वीडियो बंद कर देता हूँ। अगर तू वाक़ई सीरियस हो जा, अल्लाह ख्वाब में भी बताएगा मैं तेरा अल्लाह हूँ और मैं तेरे गुनाह माफ़ कर दिया, मैं तुझे जन्नत दूंगा, ये वादा भी ले सकता अल्लाह से। तेरा घराना वो फिल्मी दुनिया छोड़ दो। अरे मेरे को देखो, मैं 25 साल से अमेरिका में हूँ, 28 साल से दावत देता हूँ अल्लाह की तरफ। मेरे पास पैसा नहीं है,
दुनिया अमेरिका आके पैसा कमाती और मैं पैसे को लात मार दिया। एक मुद्दत हो गई, 28 साल हो गए लात मार के। हाँ, उससे पहले जो कमाया था वो गंवा लिया, लेकिन अल्लाह को मैं नहीं गंवाना चाहता और क़रीब हो गया अल्लाह के। मेरे पास पैसे का रंज नहीं है, मेरे को शोहरत का भी गम नहीं है, मेरे दो भी नहीं चाहिए, नाम भी नहीं देता मैं। तो मैं तेरे को दो बातें देना चाह रहा हूँ सलमान खान, अल्लाह करे कि मेरा वीडियो तेरे तक आ जाए हाथ को। एक तो क़यामत से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि यहूद व नसारा बुत परस्त मुसलमान तादाद में ज़्यादा होंगे और उनसे नफरत करेंगे। पूरी दुनिया में तो जायजा ले ले, जू और क्रिश्चियंस हमारी जंग में फ़लस्तीन के हमसे नफरत कर रहे, इन लोगों का नहीं न्यूक्लियर है और हमको मार डालना चाह रहे। ये लोग खुदा नहीं दिखाए, जूइश के पास खुदा है सो नहीं दिखा, क्रिश्चियन भी खुदा है बोल के नहीं दिखा, हिंदू भी नहीं दिखा। खुदा नजर नहीं आता कि चैलेंज से हम इबादत कर रहे अल्लाह की, हम सच्चे वो झूठे, मगर नफरत हमसे कर रहे। हम अल्लाह सीधा डायरेक्ट सजदा दे रहे, हमारा इतना डायरेक्ट कनेक्शन है अल्लाह से, उनका नहीं है, इस वास्ते वो नफरत कर रहे हमसे, उनके ऊपर शैतान है तो हमसे नफरत करेंगे। हम तादाद में ज़्यादा होंगे, हमसे नफरत करेंगे और हमको क्या कुछ करेंगे नहीं मालूम। अगर हम आयत करीमा अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु और आमन रसूलु और सूरह यासीन पढ़ ले और हिज़्बुल बहर घर में डाल लें, हमारी पूरी रिकॉर्डें निकल जाएगी। क्योंकि मैं रोज़ दावत के लिए निकलता हूँ, डंके की चोट पे चैलेंज दे के आता हूँ कि इस्लाम सारी दुनिया पे छा गया और इस्लाम क्रिश्चियनिटी को बीट कर दिया। यही तो सबसे बड़ा था, इसको बीट कर दिया हम। तो हमारे लिए हिंदू की कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि वो देवी बोला, वो देवी नाम की औरत को आदम के पेट जिस्म में से निकाला अल्लाह। इस वास्ते ना औरत आई दुर्गा देवी, ना तो जो है वो दुर्गा देवी गॉडेस है, मगर वो लोगों का शैतानी नफरत तेरे से है। तू बचने के लिए एक बताया कि इस्लाम पे बहुत हाथ और ज़बान चलेगी, हाथ भी चलाएंगे वो लोग, ज़बान भी चलाएंगे, नफरत करेंगे इस्लाम पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए क़यामत से पहले हम तादाद में भी बढ़ गए, 2 बिलियन हो गए हम। अब ये वीडियो में मैं अभी सिद्दीकी साहब का जनाजा जाते हुए देखा, दुनिया छोटी हो गई और मेरे हाथ में ये वीडियो है, ये क्या कहते हैं यूट्यूब के ऊपर देखा और मेरे हाथ में सेल फोन है। तो दुनिया छोटी हो गई कि नहीं देख, कल मारे सो भी मालूम होगी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ बोल के, उसके बाद में अब उनको जो है सुपुर्द खाक करने ले जा रहे, तदफीन करने ले जा रहे। अल्लाह उनके गुनाह बख्श दे, अल्लाह उनको शहीदों में मर्तबा दे। और हम मुसलमान अब नहीं बच सकते इनसे, उनकी नफरत से हम नहीं बच सकते। अल्लाह हमको बचाए, मगर दुआ तो करना पड़ेगा। तो 2 बातें बताया, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए क़यामत से पहले मुसलमानों पे बहुत जुल्म होगा और तेरे पर तो 4 खानों में से सबसे ज़्यादा तेरे पर ही जुल्म हो रहा, तेरे पर ही जो है बहुत अटैक हो रहे, क्योंकि तेरे अंदर का गुरूर नहीं मरा। तू उसको मार दे, तेरे गुरूर को अंदर बोल मैं कुछ नहीं हूँ। एक बार याद है तेरे को, मैंने प्यार किए के बाद में तेरे को हीरो के तौर पे कोई कबूल नहीं करके कई दिन तक तो फिल्म भी नहीं दिए तेरे को, तो वो एक याद रख ले कि मैं कुछ नहीं हूँ। अगर तू कुछ है समझा तो फिर जहन्नुमी बन जाएगा। बचा ले अपने आप को जहन्नुम से और अल्लाह का हो जा, अल्लाह के रास्ते खुल जाएंगे। अल्लाह ख्वाब में भी बताएगा, ये मेरा वादा और मेरा इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से तेरे लिए दुआ करूँगा, शाहरुख खान के लिए भी करूँगा, आमिर खान को भी करूँगा, वो भी शैतान है, शाहरुख खान भी शैतान है, और वो क्या नाम सैफ अली भी है। अब वो आमिर खान फ़कत फुटियों के पीछे पड़ता, उसको कुछ वो सना शेख के साथ वो कहा कि होटलों में देखा मैं, वो वीडियोज़ आए। तो ये बुरी आदतें छोड़ो। उन्हें हाजी हो गया, माँ के साथ हज कर क्या ऐसे गुनाह नहीं कर सकता, शादी करके कर जो करना है। अल्लाह अकबर।